info. Okay. Hello. Hello. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर। आवाज आ रही है बेटा? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ ठीक है। बेटे स्लाइड नजर आ रही है? स्लाइड? नो सर। हाँ यस सर। अब आ रही है? स्लाइड नजर आ रही है नहीं आ रही? यस सर, शो हो रही है। जी सर, स्क्रीन पे शो हो रही है स्लाइड। अच्छा सर आ रही है। यस सर। अच्छा, अभी दूसरी स्लाइड नजर यस सर। आ रही है ना सारी? जी सर, शो हो रही है। हाँ, यस सर, आ रही। ठीक। जी सर आ रही है। ठीक है, फिर मैं म्यूट कर रहा हूँ। आवाज आती है आप लोगों की। Well, let us start with the one of the disease which is included in the EPI schedule, and that is the viral disease. The most important topic today is the hepatitis B virus. This is a silent killer. This is known as a silent killer. We will discuss today the hepatitis B virus. Before discussing the specific hepatitis B virus, I will mention the hepatitis viruses. These are called the hepatotropic viruses. So which are the hepatotropic viruses or the hepatitis viruses? The hepatitis A virus, you will be seeing the hepatitis A virus, hepatitis B virus, which is the topic today will be discussed, and the hepatitis C virus, D and E, and lastly the hepatitis G virus, which is called the GB virus. So, lamenting upon the hepatitis B virus, that is a DNA virus, and this belongs to the family that is called the Hepodna virus family. Hepodna virus family, this belongs hepatitis B virus to this family, while the A virus belongs to the Picorno variety family, and so the family on this side, the family is written to which these viruses belong. Now let us the characteristics of the some of the viruses. You will be seeing that the hepatitis B virus is a double-stranded
DNA virus double stranded, while the other virus, they are the RNA virus. So among the hepatitis viruses, the hepatitis B virus is a DNA virus, and the other all are the RNA viruses. So discussing the one of them, hepatitis B virus. This is a structure of the of hepatitis B virus, and it has the different antigens. It has different antigens. One of the important antigen is the surface antigen, that is HBs antigen. And then inside is the core antigen, that is hepatitis B C antigen. P for core. So the second antigen is the core antigen, and the third antigen is the E antigen. So these are the three important antigens from point of diagnosis. And this hepatitis B virus, you will be seeing that it is a double stranded. It is a double stranded. While in the other viruses, you will be saying they were single stranded. You will be seeing that the C, D, and E and the A, they are single stranded. Double S means the single stranded, while the DS means it double stranded. So all of the other hepatitis viruses are single stranded except DNA, except B virus. So it is a double stranded. This is double stranded, but it is a partial. Partial means this is not complete. This is double stranded DNA virus incomplete. And this contains, that is why this is incomplete. This contains the one of the enzyme linked with this DNA, and this virus, this enzyme is called the DNA polymerase. The function of DNA polymerase is to amplify this DNA. So the antigens, the three antigens, S antigen, C antigen, and E antigen, they are present in the hepatitis B virus. Regarding the structure, it is DNA enveloped virus. It is partially double stranded DNA virus. मैंने बताया कि इसकी जो Hello, bye, Lirano. हाँ खड़ी में. Hello, it is a partially double stranded DNA virus. अपने फेस इमेज में देखा कि ये partial है, complete नहीं है. It has a surface antigen, that is the HBs antigen, and it also contains the polymerase enzyme. So it is a structure of S for surface antigen, E for escape antigen, and the C for the core antigen. So S antigen, E antigen, and C antigen. C for core, E for escape, and S for surface. So these are the antigens which are present in the hepatitis B virus. There are the different genotypes of the hepatitis B virus, A, B, C, D, and F. And these genotypes are prevalent in different countries. In Pakistan, the genotype D is present, while the F is present in the France, Germany, and USA. So the genotypes varies from country to country.
and there are 10 genotypes. याद रखने की बात ये है कि जीनोटाइप्स बी हेपेटाइटिस बी वायरस के डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं. These are the 10 and different genotypes are present in different countries. Specificity for the liver. Some of the viruses they have the affinity, the specificity for the specific organs or the tissues. This virus, hepatitis B virus, has the specificity or the affinity for the liver. ये वायरस जो है स्पेसिफिकली जो लिवर पे इनफेक्ट लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि देयर आर दी सम स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन दी हेपेटोसाइट्स लिवर सेल्स. उसीलिए ये लिवर पे ही इफेक्ट करता है. ट्रांसमिशन. How the hepatitis B virus is transmitted to the human beings? There are the 3 ways of transmission. For to remember, it is BBS. B for the one of mode of the transmission is the birth canal, or this mode of transmission is called the vertical transmission. Vertical transmission means the transmission of the infection from the mother to the babies. So this is the vertical transmission through during the birth, after the birth. So this is vertical transmission. During the intrauterine life, जब बच्चा पेट में होता है तो उस वक्त भी through the placenta it may be transmitted to the baby. During the perinatal period it may be transmitted, and by the breastfeeding it may be transmitted to the baby. So it is a vertical transmission, the birth, during the birth. Second B means the blood. Through blood it is transmitted. Different these are the different by which the blood can the infection of hepatitis B may be transmitted. The way is that reuse or sharing of needles in the adults. In this way, the reuse or sharing of needles, they can transmit the infection of hepatitis B, and sharing razors, toothbrushes, nail cutters. So sharing of these articles may transmit the infection. And reusing syringes and medical devices. वो जो syringes जो पहले use हो चुकी हैं and they are contaminated, and the virus hepatitis B virus. सर थोड़ा रिपीट करना ये वाला. कौन सा बेटा ये ब्लड का? ये पूरी स्लाइड बेटे. सर ये पूरी रिपीट करना. अच्छा, 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है during the intrauterine life, means के ये from mother to the baby transmitted. तो ये एक मोड है. एंड देन द ब्लड में कोई भी आपने ट्रांसफ्यूजन ब्लड होता है उसके जरिए भी जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस. और नीडल्स जो कंटामिनेटेड हैं हेपेटाइटिस बी से, उनकी रीयूज और शेयरिंग नीडल. एक नीडल जो है अगर किसी पेशेंट में इस्तेमाल हुई है और वो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से, तो अगर दूसरा शेयर करेगा, रीयूज करेगा, तो फिर ये ट्रांसमिट हो जाएगा. इस तरह से इन केस ऑफ द मेल्स
the sharing of razors वो भी ब्लड कांटेक्ट में आते हैं रेजर्स स्किन में बार बार, तो ये ट्रांसमिट करेगा। टूथब्रशेज एक यूज करता है, फिर दूसरा, तो दिस इज अ वे। एंड देन द नेल कटर्स में ट्रांसमिट। सो ये सारे ब्लड के साथ कांटेक्ट आते हैं ब्लड में, तो वो कंटामिनेटेड है अगर ये चीजें, और दूसरा कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उसको चांसेस आर इंक्रीज। सिरिंजेस भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। री डिस्पोजल ऑफ सिरिंजेस, ये कि एक बंदे में सिरिंज इस्तेमाल होनी चाहिए फिर डिस्कार्ड करनी चाहिए। अगर रीयूज होगा तो दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ। इस तरह से मेडिकल डिवाइसेस हैं, वो अगर इस्तेमाल की गई हैं, वो पेशेंट जो इन्फेक्टेड है बी से, तो these medical devices can transfer the hepatitis B infection, save unsafe blood transfer। अगर आपने ब्लड, कोई डोनर है ब्लड दे रहा है किसी को, तो अगर आपने स्क्रीनिंग नहीं किया और वो इन्फेक्टेड है बी से, तो ये ब्लड जो है रिसिपेंट के लिए डेट्रीमेंटल है और इट मे बी इन्फेक्टेड अगर वो ब्लड स्क्रीन नहीं किया गया है। तो ब्लड स्क्रीनिंग इज नेसेसरी प्रायर टू यूज। एक्सीडेंटल परकुटेनियस नीडल प्रिकिंग, एक्सीडेंटल खास तौर पे जो लेबोरेटरी में काम करते हैं या हॉस्पिटल्स में, तो एक्सीडेंटल प्रिकिंग हो सकती है नीडल की, नीडल प्रिकिंग, एंड दिस में allow the transmission। And the third way is the secure method of transmission। So BPS को याद रखना है, through birth canal, through blood and the secure transmission। ये 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस बी के। ये इमेज में देखें, ये हाउ the BH hepatitis B virus is transmitted। This is the non-sterile tattooing needles। ये टेटूइंग में अगर वो टेटूइंग नीडल्स इस्तेमाल की जाती है तो उसके ज़रिए भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। कंटामिनेट डायलिसिस के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो बार बार यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में, वही इंस्ट्रूमेंट, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स डायलिसिस के ये जो हैं फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये नीडल है कंटामिनेट वैक्सीनेशन में जो नीडल्स अगर कंटामिनेटेड है, इन द डेंटल सर्जरी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं, वही इंस्ट्रूमेंट बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, तो फिर वो दे will transmit the infection। The contaminated ड्रग नीडल्स जो एडिक्ट्स में बार बार एडिक्ट्स जो है वही नीडल्स इस्तेमाल करते हैं, सिरिंजेस यूज नहीं करते, तो फिर ये दिस इज पॉसिबिलिटी। एंड these are the pictures how the infection is transmitted। A perinatal transmission, quite common from carrier mother to baby। perinatal during pregnancy, ये कॉमन है कि अगर मदर कैरियर है इट कैन ट्रांसमिट ड्यूरिंग डिलीवरी टू द बेबी। इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा ड्यूरिंग द डिलीवरी। दिस इज कॉल्ड द पेरीनेटल ट्रांसमिशन। इफ मदर हेपेटाइटिस ई पॉजिटिव है, ये एक एंटीजन है हेपेटाइटिस ई एंटीजन, अगर मदर में ये है देन देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। 60 to 90% बेबीज में बी इन्फेक्टेड। तो आप देखें कि ई एंटीजन जो है हाई ट्रांसमिसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। अगर मदर हेपेटाइटिस ई एंटीजन पॉजिटिव है, हाई रिस्क है बच्चे के लिए कि वो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इफ मदर हेपेटाइटिस ई निगेटिव, लो रिस्क। ये देखें इसमें 5 to 15% रिस्क है अगर निगेटिव है मदर, अगर पॉजिटिव है तो 60 to 90%। सो स्क्रीनिंग द टेस्ट हेपेटाइटिस ई एंटीजन इम्पोर्टेंट है।
अगर सस्पेक्टेड है मदर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन तो उसमें हेपेटाइटिस ई सरफेस एंटीजन कराना चाहिए ताकि ये रिस्क रिड्यूस हो सके। अच्छा, पेरेंटल वही है, पेरेंटल किसको कहते हैं आप, इंट्रामस्कुलर हो या इंट्रावेनस हो, इसको पेरेंटल ट्रांसमिशन मींस कि ब्लड डायरेक्ट आप दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, तो ये भी पेरेंटल ट्रांसमिशन में आता है। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, कोई भी ब्लड का कोई भी कंपोनेंट आप दे रहे हो, इट इज नेसेसरी टू स्क्रीन आउट, वो ब्लड को स्क्रीन करना जरूरी होता है बी से, सी से और मलेरिया और डिफरेंट जो है वो चीजें देखनी चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी ये एक अमाउंट दी हुई है कि 0.0001 ml कैन बी इन्फेक्शियस। अगर इतनी अमाउंट है 0.0001 ml है, इट मे कैन इन्फेक्ट, इट कैन इन्फेक्ट द अदर्स। तो ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, हेपेटाइटिस वायरस है, इन्फेक्शियस वायरस। ये सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि every secretions, the human secretions contains the hepatitis B virus. Saliva, अगर वो सर ये पेशेंट दोबारा समझाएं, समझ में नहीं आ रहा। कौन सा बेटा, ये सेक्सुअल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है, मोर कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तो उनमें ये प्रैक्टिसेस हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, तो इट कैन इन्फेक्ट बाय दिस वे। और ये आज जो भी बॉडी सिक्रीशंस हैं इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये बी वायरस जो है बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट है, सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, देन ब्रेस्ट मिल्क के जरिए, सीमन के जरिए, वेजाइनल सिक्रीशन, यूरिन, बाइल एंड फीसेस, ये ऑल ऑफ दीज कंटेन द हेपेटाइटिस बी वायरस। सो ये सारे सिक्रीशंस में मौजूद है, तो ये द इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन। ये हाई रिस्क पे हैं ये सारे बंदे, ये इमेज बता रहा है कि ये सारे हाई रिस्क पे हैं। कौन कौन से बंदे जो हैं हाई रिस्क पे हैं जिनको हो सकता है इन्फेक्शन? तो मेडिकल एंड पैरामेडिकल पर्सनल वो हाई रिस्क पे है, मेडिकल के बंदे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है वो हाई रिस्क पे है। और स्टाफ ऑफ द ब्लड बैंक में जो काम करते हैं, ये जो डोनर और रिसिपेंट आते हैं, वो भी स्टाफ ब्लड जो है वो लेते हैं, वो स्टाफ। सर आज के लिए इतना काफी है सर। बेटे ये एक ही लेक्चर है, एक ही लेक्चर है, बस ये है कि मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, एंड पे आ रहा हूँ। सर ये लास्ट स्लाइड बस एंड करें। बस मैं डायग्नोसिस पे आ रहा हूँ, सिम्टम को छोड़ रहा हूँ, डायग्नोसिस पे आ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, तो लैब डायग्नोसिस किस तरह से इसकी करते हैं? वायरल मार्कर जो है वो जो है उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि वायरल मार्कर कौन से है। हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन ये एक वायरल मार्कर है, ये फर्स्ट टू अपीयर इन द ब्लड। तो एडवाइस क्या करेंगे? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को हम एडवाइस करेंगे कि ये करवाएं, ये स्क्रीनिंग में यही होता है। फिर NTHBS, ये फिर एंटीबॉडीज हैं कि पेशेंट जो है वो ये इम्यूनाइज्ड है, वैक्सीनेशन इसने ली है कि नहीं है, उसलिए ये NTHBS एंटीबॉडीज देखते हैं। और HBE एंटीजन मैंने बताया कि हाई ट्रांसमिसिबिलिटी और हाई इन्फेक्टिविटी को इंडिकेट करता है, फाउंड ओनली इन HBS पॉजिटिव पेशेंट। जो HBS पॉजिटिव, HB सरफेस पॉजिटिव होंगे सर AG का मतलब क्या है? हाँ सर इसकी फुल फॉर्म बताएं। AG, HPC, GM, GG।
HBS बेटे मैं पहले बता चुका हूँ, S मीन सरफेस एंटीजन, Yes, sir. एंटी-HBS मकसद है कि एंटीबॉडीज HBS सरफेस एंटीजन के खिलाफ, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, और ये E जो है एंटीजन एंटीबॉडी E एंटीजन है, ये हाई इन्फेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अगर मोर देन 3 मंथ्स इंडिकेट क्रोनिक हेपेटाइटिस, अगर 3 महीने तक मुसलसल ई एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है, देन दिस इंडिकेट्स द क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये इसका मकसद है कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस में चला गया है और ये एक्यूट हेपेटाइटिस से आगे फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर बार बार रिकनेक्ट हो रही है, आज के लिए इतना काफी है। सर आप अपने बुक का नेम बताएं हमें। ठीक है बेटे, ये आखिरी स्लाइड है, ये इसको फिर ये तो स्लाइड पूरी करें। अच्छा, हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए भी आइसोलेट करते हैं, तो इसको कहते हैं पीसीआर। पीसीआर इज द एग्जैक्ट डायग्नोसिस, द फाइनल डायग्नोसिस। सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटे, इसको एंड करते हैं अभी फाइनल। सर माइक्रोबायोलॉजी की बुक की नेम बताएं। किसकी? मैं 100 मरतबा तो बता चुका हूँ, जेविट्स 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 बता चुका हूँ, आपके पास नहीं है। जेविट्स में कितनी मरतबा बता चुका हूँ बेटे। म्यूट चाहिए।